I, Vijay Victor, welcome you all, my dear students, in e-learning classes of St. Michael's Academy. Now, as I have promised in my previous video, from today I will start geometry and also the doubts if you will ask from 3.7. Now, the very first I will start the geometry. Before I will start geometry, something I will share some good news about you because class 10 geometry is comparatively very easy or easier than class 9 because in class 10 there are only two topics, triangles and circles, and basically there are only five exercises, whereas in class 9 a number of topics like lines, parallel lines, triangles, quadrilaterals and circles, and each topic contain 4 to 5 exercises, and number of theorems are also more. So please find your very convenient regarding the geometry in class 10. Your first topic in class 10 is similarity of triangle. In class 9 you have studied about congruency of triangles. The basic difference between congruency and similarity, that congruency when shape and size are equal, then it is known as congruent figure, but in similarities only shapes are equal. Many of your faces, take the example of boys, their faces are similar to their mummy, because it is our myth that we consider a boy is lucky if his face is similar to mummy, and daughter we consider lucky if her face is similar to पापा. आप में से बहुत बच्चों का चेहरा अपने मम्मी और पापा से मिलता होगा. They are similar, not congruent. So we'll start the topic. Your first topic is basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem, that is known as Thales theorem. Thales is a Greek mathematician, and he described these theorems on the honor of his name. We know this theorem as a Thales theorem. What does the Thales theorem, and it is also very important theorem for your board examination. What Thales theorem tells us, that in a triangle, if a line is parallel to the other side, it divides the other two sides in equal ratio. This is the statement of Thales theorem, that line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides in equal ratio. So you are knowing in class 9, to prove any geometrical deduction or theorem, there are 5 or 6 steps. First you have to write the statement. In the second step you have to draw the figure. Third step you have to write. This is the third step. What is given? The given in the triangle ABC, DE is parallel to BC, and what you have to prove? Then you have to prove that the line which divide the other two sides at two distinct point, D and E are distinct point, alag point, the ratio of the other two sides are equal. What are the ratio? Means we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. Then the fourth step, first, second, third, fourth, this is the fifth step, sorry. We need some basic construction. What are the basic construction? That we draw DN perpendicular on AC and EM perpendicular on AB. It is mentioned here. And we join these two lines DC and B. Now, we are moving the final step. From here, the basic solution start. But one thing I would like to share you. Suppose in the examination, you are not knowing the answer of a geometry deduction or theorem, please write this basic 4 or 5 step. Out of 4 marks, I am very sure you will get at least 1 mark, because in the step marking we have to give the marks for these steps. So if you are not knowing, please write this basic 3 or 4 step. You will get 1 mark out of 4 marks. Now then we are coming to the proof point. Now, we'll find out area of triangle ADE
upon area of triangle. Now for this triangle I would like to discuss with you certain point, because we have to take this one AD upon DB. From this triangle we will take AD. For DB we have two options. Come here, now see this figure. For DB we have triangle BDC and we have triangle BDE. See here in the figure, BDC and BDE. Out of these two triangle, which triangle we need to take? ये आपको समझना है बच्चों. यही इस थ्योरम का की फैक्ट है. अगर इसको समझ गए अच्छी तरह से तो आप कभी भी इस थ्योरम में गलती नहीं करेंगे. मैं फिर से दोहराता हूं कि बीडी डीबी लेने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल के ऑप्शन है, बीडीसी और बीडीई. कौन सा ट्रायंगल ऑप्ट करेंगे और क्यों करेंगे? दिस क्यों इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो आई स्प्लिट दिस ट्रायंगल हियर, BDC and BDE. Now please see first BDC. BDC. We have to find area. To find area we need a base and perpendicular. If we take BDC here, this triangle BDC, BD may be base but there is no perpendicular to the BD from the opposite vertex. C से BD पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया गया है. मैं रिपीट करूंगा कि अगर हम BDC को ट्रायंगल BDC को लेने के लिए सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में देखना पड़ेगा BD का अपोजिट वर्टेक्स क्या हुआ बच्चों? BD का अपोजिट वर्टेक्स C हुआ, जो यहां पर मैंने फिगर स्प्लिट करके बनाया है. तो C से BD पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया गया है. अब हमारे लिए दूसरा ऑप्शन बचता है. दूसरा ऑप्शन क्या हो गया हमारा? BDE. इस फिगर को स्प्लिट करके मैंने यहां बनाया, देखिए BDE. इसमें आपने देखिएगा E से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, दैट इज EM, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन AB. इट इज रिटन हियर, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB. इसका मतलब हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर को शो करता है. आपको एक चीज और समझना है बच्चों, BDE हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. तो ऑब्ट्यूज एंगल से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उस ट्रायंगल के जो लाइन सेगमेंट होगा उसके अंदर पड़ेगा. बाकी दोनों जो एक्यूट एंगल होंगे उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उस लाइन के बाहर पड़ेगा, लेकिन उसका बेस क्या होगा? यही बेस होगा, BD ही उसका बेस होगा. तो ये क्लियर हो गया कि हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है? BDE. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. नाउ 1/2 इसके लिए बेस हो गया हमारा AD और परपेंडिकुलर हो गया हमारा EM. इसके लिए हमारा बेस हो गया 1/2 BD और इसके लिए भी बेस परपेंडिकुलर हमारा होगा कौन सा बच्चों? EM ही होगा, क्योंकि EM इज द परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB और AB पर AD भी पड़ता है और DB भी पड़ता है. तो ये EM परपेंडिकुलर है, वो AD पर भी है और DB पर भी है. इतना आपको समझना है. और मैं यहां क्लियर किया हूं क्यों हमने BDE लिया, क्यों हमने BDC नहीं लिया. अब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हाफ और हाफ हमारा कैंसिल हो गया, EM और EM हमारा कैंसिल हो गया. क्या बच गया बच्चों? AD अपॉन BD. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? अब हमको लेना है AE अपॉन EC. इसमें हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. इससे हमको बेस AE मिल गया. अब EC लेने के लिए फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल DEC. फिर से मैं दोहराऊंगा, इस EC बेस को कवर करने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल का ऑप्शन है, BEC और DEC. देखिए मैंने यहां स्प्लिट करके बनाया है, BEC और DEC. अब EC पर हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो B से हमारा कोई भी इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया गया है, लेकिन यहां D से EC पर परपेंडिकुलर है उसके प्रोड्यूस पार्ट पर, इसलिए हमारा सही ट्रायंगल कौन सा हुआ? ट्रायंगल DEC, नहीं कि
BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एक बार और मैं क्लियर करूंगा, BEC मैंने क्यों लिया कि EC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या हुआ, B हुआ, लेकिन B से उस पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया गया है। जब हम DEC को हम देखते हैं तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बच्चों, D से AC पर। तो AC के किसी भी पॉइंट पर AE पर भी परपेंडिकुलर है और AC पर भी परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इसके लिए कौन सा लिया, हमने लिया ट्रायंगल DEC। अब ये हो जाएगा 1/2, इसका बेस हो जाएगा हमारा AE, और AE के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट वर्टेक्स से DN अपॉन इसका 1/2, बेस हमको लेना है EC, और EC के लिए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा DN, क्योंकि DN जो है उस पूरे AC पर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि उसके AE पर हुआ और EC पर भी हुआ। यहां से हम फिर हाफ और हाफ को हम कैंसिल कर दिए, DN और DN को कैंसिल कर दिए, तो AE अपॉन EC हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इक्वेशन 1 और 2 पर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 में जो न्यूमरेटर है हमारा ट्रायंगल, न्यूमरेटर में हमारा क्या है, ADE और ADE है, ये दोनों इक्वल है। अब डिनोमिनेटर के ट्रायंगल को देखते हैं, BDE। हम BDE को हम शेड कर देते हैं, BDE को हमने रेड से शेड कर दिया, और DEC को हमने ब्लैक से शेड कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो, और एक थ्योरम मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल्स लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। आपने पढ़ा होगा, सिंस triangles lie on same base and between same parallel lines are equal in area। तो इन दोनों के जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल लिखेंगे कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC लाई ऑन बेस DE। देखिए दोनों में हमारा DE है, लाई ऑन बेस DE एंड बिटवीन DE पैरेलल टू BC। इससे क्या मिला हमको, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। जब इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया और न्यूमरेटर इक्वल है, इससे हमको क्या मिला, इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। क्लियर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब हमारा इक्वल है तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। बच्चों जब भी थेल्स थ्योरम प्रूव करने को आएगा तो आपको ये स्टेटमेंट इतना लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल है उसको कैसे ऑप्ट करेंगे उसको समझने के लिए ये हमने जो इस सेगमेंट वाला पार्ट बताया है कि हमको चेक करना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो परपेंडिकुलर उसके अपोजिट वर्टेक्स से है या नहीं है। जैसे ही आपको अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर मिलेगा आप मान लीजिएगा कि आप बिल्कुल सही हैं। अब इसका एक छोटा सा पार्ट बाकी है जिसको बोलते हैं कोरोलरी। तो अब मैं इस सेक्शन को मैं रब करूंगा बच्चों, और उसका इसी थेल्स थ्योरम के कोरोलरी को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कोरोलरी प्रूव करने का मेरा उद्देश्य यही है कि इससे आपको बहुत सारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आप इन कोरोलरी के हेल्प से बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे
कोरोलरी। कोरोलरी के मतलब होता है रिजल्ट। कोरोलरी के मतलब क्या होता है? रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम थेल्स थ्योरम। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ देखिए, हमारे पास हमने इसको प्रूव किया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इन दोनों में 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। एड 1 बोथ साइड्स, तो हमारा क्या मिल गया? ये हो गया हमारा DB, AD प्लस DB इज इक्वल टू यहां हो गया हमारा EC, AE प्लस EC। तो क्या रिजल्ट मिला हमको? AD प्लस DB। देखिए AD प्लस DB इज इक्वल टू AB, तो ये हो गया हमारा AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो इसको अगर हम समझने वाले लैंग्वेज में बोले तो पहले टुकड़ा वाला इक्वल था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द बेसिक थेल्स थ्योरम। इसी से मिला हमको AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, यानी कि टोटल बटा नीचे वाला इज इक्वल टू टोटल बटा नीचे वाला ऑफ दूसरा साइड। और ठीक इसका उल्टा हम अभी एक और चीज ऑब्टेन करेंगे, टोटल बटा ऊपर वाला। तो इसके लिए क्या करना है, ये कोरोलरी नंबर हमारा A हो गया, और कोरोलरी नंबर B के लिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका ट्रिक क्या है बच्चों कि जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज नहीं हुआ, DB DB DB। अब इसको क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स किए तो क्या मिला हमको? DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब फिर हम इन दोनों में क्या ऐड कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। यहां पर एलसीएम क्या हो गया हमारा? AD DB प्लस AD, और ये हो गया हमारा AE EC प्लस AE। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको? DB प्लस AD हो जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो इसको अगर हम लोकल लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या होता है? AB अपॉन AD मींस टोटल बटा ऊपर वाला इज इक्वल टू AC अपॉन AE टोटल बटा ऊपर वाला। इन दोनों कोरोलरी का यूज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में करेंगे। तो थेल्स थ्योरम और उसको कोरोलरी को मैंने स्पष्ट कर दिया। अब इसके फॉलोइंग वीडियो में इसके कन्वर्स में बताऊंगा बच्चों, लेकिन आपका होमवर्क है कि इस थ्योरम को आपको 5 बार अलग अलग नामों से बनाना है। मैंने ABC से बनाया है, आप PQR से बनाइए, MNO से बनाइए, XYZ से बनाइए, अलग अलग 5 नामों से बनाना है, तभी आपको ये थेल्स थ्योरम पूरी तरीके से कॉन्क्रीट तरीके से समझ में आएगा। और थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज थ्योरम आर द फार्मूला फॉर टू सॉल्व द डिडक्शन करेक्टली। थैंक यू।